Hare Krishna, good evening, and welcome all of you all. I wait for the spotlight to be on. Yeah. So today we are going to discuss about the Sundarkand, and on the eve of Ram Navami, which is there tomorrow morning, we're going to discuss about the Sundarkand in detail. There are some important things which we can take, and some questions will be asked, like how come and why we have taken up Sundarkand. What is this reason why we have taken Sundarkand when the entire Ramayana is supposed to be discussed at the time of Ramnavami? So there's a secret answer for this. First and foremost, uh, Ramayana means it's the entire pillar for Bollywood. Yes, every movie, whichever you see today, is somewhere or the other connected to Ramayana. Yes, if you see general movie, what is the general story? There's a hero, there's a heroine, and the villain comes, kidnaps the heroine, takes her to a secluded place, and वहां पे हीरो जाता है, लड़ता है, अपनी हीरोइन को छुड़ाता है और वापस लेके आता है. So don't worry, the entire film industry is taking the story from Ramayana only. So Ramayana is sold. Second, what is the importance of Ram avatar with respect to Krishna Leela? कृष्ण लीला और राम लीला में क्या अंतर है? पहले चीज तो लोग अक्सर कहते हैं कि प्रवचन देना बहुत आसान है. प्रभु जी, प्रवचन देना तो बहुत आसान है. जीवन उसकी तरह निभाना या जीवन उसकी तरह से व्यतीत करना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ एज पर व्हाट वी प्रीच. सो व्हाट डिड लॉर्ड डू इन द कृष्ण लीला? ही प्रीच्ड द भगवद गीता. ही गेव अस द भगवद गीता, and that Bhagavad Gita is the manual in which one lives his life. So, भगवान ने जानबूझकर राम अवतार में या राम लीला में जो मनुष्य जिस तरह से जीवन बिताना है, ही शुड स्पेंड हिज लाइफ, उसको भगवान ने दिखाया रामलीला में, ताकि बाद में प्रवचन दे. पहले खुद जीवन को नो बिताकर दिखाएं कि हाउ अ पर्सन हैज टू लिव हिज लाइफ, एन आइडियल पर्सनस लाइफ, आइडियल ह्यूमंस लाइफ. एंड दैट वाज शोन बाय Lord in the Ram Leela, and then in the Krishna Leela, he gave the Bhagavad Gita. That is why only when Krishna appears in one day of Brahma, once Krishna appears in the Swarup, the full Swarup. Other Leelas always happen in all Swarups, but Krishna Leela happens only in one day of Brahma. That is in the 26th cycle. And that is why in that only millennium, Treta comes first and Dwapar comes second. कहते हैं ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग. ऐसा होना चाहिए सिस्टम. द्वा मीन्स टू, त्रेता मीन्स थ्री. बट कैसा इस टाइम आप देखोगे तो त्रेता पहले आया और द्वापर बाद में आया. उसका कारण क्या है? The Karan was since Krishna came and Krishna is going to give the Bhagavad Gita himself. तो लोग बोलेंगे अरे आप प्रवचन देते हो, एक बार जी के तो दिखाओ इस तरह से. तो भगवान ने पहले जी लिया. त्रेता युग में रामचंद्र जी के जीवन का जो चरित्र है, in that he has shown that how one has to live an ideal life. And then in the Dwapar Yug, he came and gave us the teaching of the Bhagavad Gita. So this is the few reasons why Ram Katha or Ram Leela is so important. Now coming to the part, what is so great about Sundarkand, which we have chosen today, a day before Ramnavami, when we could have studied the entire Ram Leela? Okay, वो नहीं तो कम से कम बाल कांड करते या अयोध्या कांड करते. बाल कांड में मैरिज ऑफ सीता मैया सब होता, you know, childhood pastimes and marriage of Singh, Ramchandra ji killing the Tataka and other asuras and all that. वो भी छोड़ के चलो आरण्य कांड, किशकिंडा कांड, युद्ध कांड कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग द सुंदर कांड. सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सुंदर कांड? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट,
द मोस्ट सुंदर व्यक्ति इस धरती पे कौन है? भगवान स्वयं. तो इट इज रामचंद्र जी इज सुंदर. और सुंदरी कौन है? डेफिनेटली द हीरोइन सीता मैया. तो सुंदर, सुंदरी. और प्रभु जी बोलेंगे आप तो प्रभु जी कहाँ है? सुंदर तो आया ही नहीं पिक्चर में. ये मतलब सुंदरकांड में तो सुंदर का रोल ही नहीं है. सिर्फ सुंदरी, वो भी रो रही है किधर उधर बैठ के. सुंदर, सुंदरी. और हनुमान जी का एक्चुअल नाम क्या है? एंड अंजना had actually kept the name of Hanuman ji as Sundar. And he was Sundar. जब हनुमान जी, that is sorry, सुंदर सूर्य भगवान को खाने चले गए एज अ फ्रूट समझ के खाने चले गए, तो इंद्र भगवान ने वज्र मारा. और वज्र मारने से क्या हुआ? उनका हनु मीन्स चिन, लोअर जॉ, दैट गॉट ब्रोकन. That is why he got the name Hanuman. Otherwise, his actual name was Sundar. अंजन पुत्र कहते हैं, कोई कहते हैं पवन पुत्र कहते हैं. मतलब actually these are not the real names. These are all उपदान कारण. The actual name is given to him as Sundar. तो एक सुंदर व्यक्ति एक परम सुंदर का क्या बोलते हैं मैसेज लेके एक सुंदरी के पास जा रहे हैं, एंड एक सुंदरी का मैसेज लेके जाके वापस उस सुंदर को वापस दे रहे हैं. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सुंदरकांड. सब कुछ सुंदर है ना. द नायक इज सुंदर, नायकी इज सुंदर, और सुंदर व्यक्ति का नाम क्या है? सुंदर. और उन्होंने क्या किया? रीयूनिट, यूनाइट करवाया दोनों को. जो बिछड़े हुए थे उनको यूनाइट करवाया by giving the ring and taking the chudamani and giving it to her. So this is one of the reason why this is called as Sundarkand, and that is why it is very sundar. बहुत कुछ सुंदर है, सब कुछ सुंदर है इसमें. One more reason. Inside the Sundarkand, the entire Ramayana is recited by by Hanumanji to Sita Maiya in Ashok Vatika. That is why this is the only Kand wherein the entire recitation of the Ramayana takes place in this Kand only. And there when he is speaking to Sita Maiya, he is predicting अभी आगे जाके आपका यहाँ से आपको छुड़ा के रामचंद्र जी लेके जाएंगे और वहां पे आप लोगों का दोनों का पट्टाभिषेक होगा, मतलब आप लोग दोनों का coronation होगा, and you will be again king and queen. So the entire Ramayana is recited in the Sundarkand by Hanumanji when he wants to disclose his identification to Sita Maiya. My one question to all of you: why did Hanumanji not go back when Ramchandra ji left with his entire entourage? सब लोग चले गए, एक दो जन रह गए, एक जामवन जी रह गए और एक हनुमान जी रह गए. परम भक्त थे, क्यों नहीं गए? Yes, anyone can give an answer. प्रभु जी, राम भगवान ने बोला था ना जाने के टाइम पे ये लोग दोनों को जब तक कलयुग खत्म नहीं हो जाता, पूरा पृथ्वी मतलब ये पूरा खत्म नहीं होता, युग तुमको रुकना पड़ेगा. कोई वॉचमैन बना के रखा था उनको. नहीं, बट उन्होंने बोला था ना लास्ट तक, अंत तक रहोगे तुम दोनों भी. वो तो चिरंजीवी हैं, बट उसके पीछे कारण है. प्रभु जी, I need to ask one question. and विभीषण जी भी है ना? विभीषण जी, हाँ विभीषण जी भी हैं. So many characters like in from Mahabharata, but how come Hanuman, the closest associate of? I think I can answer of Jamvanji. No, Jamvan, you already given answer in your katha, but I want to know how come. But I want to know why. How come Hanuman did not go back? Okay, I'll tell you the answer. Because a lot of things to be covered, so time is short. So I'll tell the answer. हरि कथा करनी है, लोगों को बताना है कैसे हरि कथा करना. Prabhu, you're right, very much true, but there is one important point. Samrat, what Samrat says is right.
something very important. You know, at the end of Sundarakand and the starting of Yuddhakand, after Hanumanji completes his mission, his what do you say, um, going to Lanka and coming back, what we call it as what was that nice thing, which is nice game, which happened at Uri, what was that, surgical strike. The first surgical strike was actually done by Hanumanji. Fantastic surgical strike, गया स्ट्राइक किया, जला के आ गए वहां पे. और आने के बाद रामचंद्र जी, he comes to Ramachandra and gives a news. Yes, I have seen Sita Maiya. मैंने सीता मैया को देख लिया है. And then both Lakshman and Ramchandra ji, tears just run from their eyes. That time, Hanumanji was standing in front of. Actually, he did not come and stand when all the monkeys came. He didn't come before. He said, "Hey, मैंने किया, ऐसा नहीं बोला." Hanumanji was quietly standing behind. But all the other monkeys pushed him ahead. Hey, जाओ आगे जाओ, तुम तो main person थे यार. You are the main hero of the Sundarakand. Sundarakand के सुंदर आप ही हो, आप जाओ आगे. Then he gives the information. Yes, I have seen Sita and Sita is fine, but she is lamenting for you and you've got a short time of 2 months. And when Ramchandra ji listens to that, he gives one nice hierarchy of example. He says, you are the best servant. My best servant. मेरा best सेवक हो आप. कैसे? सेवक वो जो पहले जाता है, कार्य करता है, जो मालिक का दिया हुआ कार्य करता है और उससे अधिक कुछ करके आता है, वो बेस्ट सेवक है. He has the potential to do. Suppose you tell someone, भाई जनरली अक्सर सास बहू में होता है ना, अरे गैस पे चूल्हे पे चावल चढ़ा देना. हम लोग में एक कहावत है साउथ इंडिया में, 4 बहुएं थी एंड 4 बहुएं का काम डिवाइडेड था. एक चावल धोएगी, दूसरा चावल को कुकर पे रखेगी, तीसरा गैस बंद करेगी और चौथा उस चावल को निकाल के टेबल पे रखेगी. ये सिंपल सिस्टम था हमारा साउथ इंडिया में. इट्स अ जोक, इट्स अ लोकल वे ऑफ टॉकिंग. What happens was, once one bahu keeps the चावल on the gas, but दूसरा गैस ऑन करती नहीं है, तीसरा अपना काम करती है, बस चूल्हा बंद करना. अरे पका कि नहीं वो भी तो देखो. नहीं मेरा काम मैंने कर दिया. There are many people like that. But Ramchandra, when Hanumanji went, he did not just find out about Sita, he did one step ahead. He found out about the army strength, the location, अंदर कैसा सेटअप है, कहाँ पे आर्मी रखा हुआ है, क्या है, कैसा है, रावण कहाँ रहता है, पूरा अंदर का ज्योग्राफी निकाल के he comes and tells Ramchandra ji. That is why he says, best of my servant. मैंने जो कार्य दिया था उससे अधिक करके आया. सेकेंड क्लास ऑफ सर्वेंट्स, जो काम दिया है वो करके आते हैं. एंड थर्ड क्लास, उनमें क्षमता होती है फिर भी के नहीं आते. दे आर कॉल्ड एज थर्ड क्लास ऑफ सर्वेंट्स और सेवक्स. सो यू आर माई बेस्ट ऑफ द सेवक एंड आई एम इन वनवास. I have nothing to give you. I want to award you something. So I will award you with only one thing, with my embrace. And you all must have seen a photograph where Ramchandra ji embraces Hanuman. क्लोजली एम्ब्रेसेस हनुमान. आप लोगों ने शायद वीडियो में या वो इसमें सब देखा होगा. तो देयर ही एम्ब्रेसेस हनुमान. तो हनुमान जी कहते हैं, इस शरीर को छुआ है, भगवान ने आलिंगन किया है मुझे इस शरीर को. ये शरीर एज इट इज लिबरेट हो गया है. मेरे लिए अभी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश नहीं है मेरे पास. एंड विद दिस एम्ब्रेस, व्हाट मोर लिबरेशन आई वांट. एंड लॉर्ड सेज दैट टाइम, for a person like you, I will come again and again and again to interact with a person like you. So Hanumanji says, since Lord Ramchandra ji is going to come again and again in the form of his katha, there is no difference between Lord Ramchandra ji and Ramchandra ji's katha. So जब जब कथा कहा जाता है, एक कुर्सी खाली रखा जाता है. आज भी कहीं भी आप चले जाओ, राम कथा के वक्त एक चेयर खाली रखते हैं. That was a nice one, good chair, because कहते हैं हनुमान जी आज भी आते हैं और वहां बैठ के राम कथा सुनते हैं.
So these are the reasons why Sundarkand is very, very important. So let's start the Sundarkand. You all know up to the point that all the monkeys had reached the southern tip point, and from there they were मायूस थे कि आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था. रामचंद्र जी ने अपने आप को भगवान साबित कैसे किया? उन्होंने जानबूझकर, सिर्फ 4 टीम जा रही थी, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट. किष्किंधा से 4 टीम सुग्रीव ने भेजा था पता मैया के बारे में. तो उन्होंने उनके हाथ में बराबर जो टीम साउथ इंडिया जा रही थी, जो साउथ की तरफ जा रही थी, उसके हाथ में उन्होंने वो क्या कहते हैं, चूड़ा अपना अंगूठी, रिंग, जिसमें राम लिखा हुआ था, वो निकाल के उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं, हनुमान, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, आप जरूर सीता मैया को दर्शन करोगे और सीता मैया को मिलके आप जब मिलोगे तब ये अंगूठा दे देना, अंगूठी दे देना. तो व्हाट डज दिस मीन? Ramchandra ji knew which of the teams will be able to see or meet Sita Maiya. So when they were all upset, that time Sampati comes, he tells, chalo, I can see Sita Maiya is in Lanka and mujhe yahan se dikh raha hai, because he was a vulture, he got a very good eyesight, and सब बंदरों के बीच में मीटिंग चल रहा है. भाई अभी कौन जाएगा लंका में, जाके एक्चुअली देख के आएगा सीता मैया है कि नहीं है. तो सब लोग बोलते हैं मैं, कोई बंदर बोलता है मैं 10 योजन, तो कोई 20 योजन, तो कोई 50 योजन. अंगद कहता है मैं 100 योजन जा सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, 100 योजन मैं आराम से जा सकता हूँ. बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं रिटर्न नहीं आ सकता हूँ. बोला क्या फायदा, जाओगे देखोगे रिटर्न नहीं आओगे तो क्या फायदा, न्यूज वापस लेके अभी आना है ना. तो अब क्या करें? तो अब जामवन वहां पे खड़े थे, वहां पे उन्होंने देखा भाई अभी मुझे हनुमान को याद कराना है. हनुमान एकदम कोने पे बैठे थे, कुछ याद नहीं था कि उनकी इतनी ताकतें हैं. एंड बिकॉज एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था बचपन, बिकॉज हनुमान वॉज सुपर, रियल सुपर हीरो. उनके जितने भी हमारे अंग्रेजों के सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, जितने भी मैन हैं, उससे हमारा हनुमान वॉज 1000 times superior, 1000 times superior, because he was none other but an अंश of शिवजी. एंड ब्रह्मा जी, वायुदेव था, अपने इंद्र, सब ने उसको आशीर्वाद दिया था कि भाई हमारा कोई अस्त्र शस्त्र तुम पे काम नहीं करेगा. एवरीवन हैड ब्लेस्ड हिम, सो ही वाज सुपर पावरफुल. तो ही वाज टू डू लॉट ऑफ मस्ती इन हिज चाइल्डहुड डेज, ट्रबल द ऋषिज. सो एक ऋषि ने श्राप दिया था, भाई तू जब तुझे कोई याद कराएगा, जब कोई भक्त याद कराएगा तुझे तेरी ताकतों का, तब तुझे याद आएगा, तब तक तुझे याद नहीं रहेगा, यू विल बी अनअवेयर ऑफ योर पावर्स. So Hanuman had actually forgotten. So now it was a job of Jamban to remind him of his powers. And as soon as he reminded him, he recollected all his powers, and he said, now I'll go and get the information, meet Sita Maiya and come back. So what did he do? He went on the Mahendra Parvat. He climbed the Mahendra Parvat. It's a very big Parvat in South India. It's not in Rameshwaram, it's a little far off from there. So he got on the Parvat. And what did he do? The first thing, what did he do? उन्हें पहले नमन किया, भगवान को नमन किया, और फिर सूर्य देव को नमन किया. अब बोलेंगे क्यों सूर्य देव को क्यों नमन किया? Because सूर्य देव was his spiritual master, गुरु. कहते हैं गुरु को वंदन करके कोई भी कार्य करोगे तो आपका सफलता होती है. So he did his naman to his guru, Surya Devata, from whom he had taken all the knowledge, and then he prepared himself to shoot. The rocket launch, उन्होंने अपने आप को launch किया. And what did he declare before leaving? Either I shall bring back Sita, or I shall uproot the entire Lanka along with Ravan and get it over here. That's the determination a person should have in his life. You know, actually management studies अगर करना है, सिर्फ रामायण पढ़ लो, पूरा management studies आ जाता है. Leadership,
everything can be understood from that. Finally, Hanuman sprang to the sky, was on his journey to, and how did he start his journey? It is said, he just said, Jai Siya, that's all. Ram complete nahi kiya. By the time he completed his Ram, he was on the other side of the sea. That was, he was in Lanka. But just imagine. That's why he said as Ashta Siddhi no Nidike Data. He had all the Ashta Siddhis. So he expanded himself into a huge form and he shot himself out. कहते हैं उनका शैडो जो पानी पे जो परछाई गिरी थी, that was measured by 80 by 240 miles. 80 miles by 240 miles was a shadow of Hanumanji on the sea. So you can imagine how huge he must have become. And he slept. But you know, always no journey is that easy. जैसे वो निकले थोड़े आगे गए, समुद्र में से अंदर से एक पर्वत बाहर आया, मैनाक पर्वत. एक्चुअली वो मैनाक पर्वत का इंटेंशन बहुत अच्छा था. सतयुग चल रहा था, तब सभी पर्वतों को पंख हुआ करते थे. तो इंद्र ने क्या किया, उस टाइम पे जो पर्वत उठते थे, कहीं भी किसी भी ऋषि के ऊपर आके बैठ जाते, गिर जाते तो हानि होता. तो सभी ऋषियों ने कंप्लेंट किया, तो इंद्र ने अपने वज्र से सारे पंखों को काट दिए थे. तो ये जो मैनाक पर्वत, उसको वायु देवता ने बोला जा जा छुप जा, समुद्र में जाके छुप जा, बच जाएगी. तो वायु देवता का जो एहसान था उसको रिपे करने के लिए मैनाक पर्वत बाहर आया. बोला आपके पिता ने हमारी बहुत सेवा की है, आप एक काम कीजिए. एक्चुअली हनुमान वाज गोइंग सो फास्ट, उन्होंने एक बीच में जैसे पर्वत आया, उन्होंने एक छोटा सा मुक्का दे दिया. बट अरे मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं प्लीज कम एंड टेक रेस्ट ऑन मी, आराम कीजिए मुझ पर, देन यू कैन गो अहेड. तो हनुमान जी ने बोला अब मैं रेस्ट करने का मेरा पास टाइम नहीं है. नहीं प्लीज आपको करना ही पड़ेगा. तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, मैं काम करता हूँ, प्रेम से उसको आपको मैं छू लेता हूँ. आई विल जस्ट टच द माउंटेन एंड आई विल गो अहेड, व्हेन आई टाइम आई विल टेक रेस्ट. सो यू नो, मान भी रख लिया और अपना काम भी हो गया, वो आगे निकल गया. तो when he left ahead, the Parvata was very happy and blessed him. Then when he went ahead, all the demigods started thinking, क्या ये हनुमान वहां पहुंच पाएगा, कर पाएगा? It's a big question whether he will be able to make it or not. So what did he do? The demigods asked the celestial जो नाग देवी है सुरसा, उसको बोला प्लीज आप एक काम करो, टेस्ट करो हनुमान जी वहां पहुंच पाएंगे क्या, रियली इज अ सुपर हीरो और ऐसे ही क्लेम कर रहा है अपने आप को. तो हनुमान जी आए तो सुरसा आगे सामने आ गई, बड़े राक्षसी बन के, मुंह बड़ा खोल के. बोला तुझे मेरे मुंह में जाना पड़ेगा. हनुमान जी बोला माफ करो, अभी मुझे काम पे जा रहा हूँ, आई एम वेरी बिजी, काम करके आऊंगा, बाद में आपके मुंह में जाता हूँ. नहीं ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया है, जो भी जाएगा मेरे मुंह में पहले जाएगा अंदर, तो आपको मेरे मुंह के अंदर जाना ही पड़ेगा. ठीक है. हनुमान जी बोला ये तो मानने वाली नहीं है, ये सुरसा राक्षसी. तो अपने आप को बड़ा किया. ही मेड हिमसेल्फ 100 योजन्स. तो सुरसा ने अपना मुंह 110 योजन्स. He made himself to 120 योजन्स. सुरसा opened her mouth to 150 योजन्स. He made himself to 180 योजन्स. Sursa opened her mouth to 180 योजन्स. 190 योजन्स. Now Sursa was expecting अब 200 योजन्स का करेगा ना, मालूम है मैं अपना मुंह 200 योजन्स का करती हूँ. जैसे उन्होंने 200 योजन्स सुरसा ने किया, हनुमान जी ने अपने आप को छोटा कर लिया. As small as a small fly. सीधा गए, उसके मुंह के अंदर जाके आ गए. बाय द टाइम शी कुड क्लोज द माउथ, ही वाज आउट. एंड क्या बोला उन्होंने, देखो आपकी इच्छा तो मैंने पूरी कर लिया, आपका बात मैंने रख लिया. आपने क्या बोला था मेरे मुंह में जाना, मैं गया आपके मुंह में. आई हैव एंटर्ड योर माउथ एंड आई केम आउट, सो आई हैव केप्ट योर वर्ड. शी वाज वेरी हैप्पी. शी ब्लेस्ड हिम. यू वेरी विल बी ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन योर मिशन, इन योर वॉयज.
It is said, आचार्यगण कहते हैं यहाँ पे, two things are required. One is, whenever you are in a mission, you are tested. First, you get some nice things. कहते हैं भगवान के सेवा में जैसे जाओगे ना, वहां पुजारी बोलेगा रहने दो, बाद में सेवा करो, पहले प्रसाद खाओ, और खूब सारा प्रसाद मिलेगा खाने के लिए. आप खाने बैठ गए तो गया, खाने के बाद पेट भर जाएगा, क्या काम करोगे, क्या सेवा करोगे. सेकेंड टाइम यू विल बी टेस्टेड, भाई आपका वाकई में कर पाओगे या नहीं. ये जिंदगी का सफर है. This is what is life is. Life gives you some comfort zones, and sometimes it tests you. And then when Hanumanji went further ahead, there was a bigger problem waiting for him. And that was Shmika, the Rakshasi. और उसका पास स्पेशलिटी क्या था, वो हनुमान जी का छाया जो जा रहा था उसी को पकड़ लिया उसने. And Hanuman ji could not move. But then Hanuman ji said, okay, I'll show you my true self. He made himself small, entered her mouth, expanded, tore her stomach, and came out. In this way, Hanuman ji cleared all his 3 problems and reached Lanka. और यहाँ पे आचार्यगण का बहुत important एक understanding है. Why Hanuman ji had to go through aerial route, swimming in the water also, और जैसे अगस्त्य मुनि ने किया था, समुद्र को पी लेते और इसके ऊपर समुद्र का जल को पी लेते और धरती पे चल के भी जा सकते थे. What was the need for him to go through that aerial flying zone and show us what was the thing he wanted to explain to us? It is said, वो सागर हो या भव सागर हो, पार करना हो तो एक ही तरीके से कर सकते हो, मुंह में राम नाम होना चाहिए. भगवान का नाम अगर मुंह में है तो भवसागर पार हो सकता है. और भवसागर में 3 चीजें हमेशा आती हैं. एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम दिखेगा बहुत खूबसूरत, आ जाओ रेस्ट करो, मत जाओ आगे. अगर हनुमान जी वहां रेस्ट करने लगते तो आगे कैसे जाते. और हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं. क्या है ना प्रभु जी, भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं है प्रभु जी हमारे पास, ये सब के लिए टाइम नहीं, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा कल रात लेट नाइट हो गया तो थोड़ा आराम से उठता हूँ, सुबह भगवान की पूजा करने के लिए टाइम नहीं है. सेकंड, भगवान ने पहला टेस्ट पार कर लिया, थोड़ा बहुत आपने एंथुजियाज्म दिखा लिया, नहीं आई वोंट बी इन अ कंफर्ट जोन, आई विल पुश माई सेल्फ. थोड़ा आगे जाओगे तो आगे एक सेकंड टेस्ट आएगा जो एक्चुअल टेस्ट है. ऐसा काम बढ़ जाएगा, ऐसा बिजनेस बढ़ जाएगा, आपको वक्त ही नहीं मिलेगा भक्ति करने के लिए. दैट इज अ टेस्ट. वो उसमें से पार होने के बाद तीसरा टेस्ट आएगा जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स रहेंगे जिंदगी के, जिनको आपको पार करना है. देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. इसके लिए भवसागर अगर पार करना है, वो सागर हो या भवसागर हो, पार करने के लिए एक ही ताकत है, एक ही मंत्र है, और वो है भगवान का नाम, जो हनुमान जी लेते लेते भवसागर पार कर गए. एंड देन वेर ही रीच्ड देयर, वहां पहुंच के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया. अभी शाम तक वेट करता हूँ और इस विराट स्वरूप में नहीं जाऊंगा, छोटा बन के जाऊंगा. तो छोटा बन के खड़े थे वहां पे घुसने के लिए. अगर क्या है ना, कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाओ, इमिग्रेशन ऑफिसर रहता है ना, तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर थी वहां पे जिसका नाम थी लंकिनी. एंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर वेरी स्मार्ट. कहीं भी कोई भी कोने से आप निकलोगे तो पकड़ लेंगे आपको. तो सिक्योरिटी चेक, हनुमान जी एकदम छोटा बिल्ली के साइज में बंदर बन के जा रहे थे. उसको टक रोका, भाई कहाँ जा रहा है. तो हनुमान जी बोला, क्या है, अभी बंदर हूँ, टूरिस्ट हूँ, जरा घूम घाम के जाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत घूम के जाऊंगा. नो, यू कैन नॉट गो इनसाइड, यू हैव टू स्टे हियर ओनली. मैं अंदर से राक्षसों करती हूँ, तेरे जैसा बंदर वंदर के लिए जरूरत नहीं है, प्लीज कुछ तो ऐसा मत करो, मुझे जाने दो. नहीं जाने नहीं दूंगी. और इसको गुस्सा आया, लंकी ने जोर से एक झापड़ मारा हनुमान जी को. तो हनुमान जी को आया गुस्सा, बोला अच्छा अब कर देता हूँ तुझे एक. तो उन्होंने अपना मुट्ठी बंद किया और बोला नहीं, राइट हैंड से मारूंगा, गलत है. क्या है ना, उस जमाने से वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा था. चाहे वो रामचंद्र जी ताटका को मारे या हनुमान जी लंकिनी को मारे, लेडीज को पहला रेस्पेक्ट बहुत हुआ करता था. तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट हैंड उठाया
और कहते हैं, मतलब हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम लोग कैसा करते हैं, अरे यार याद नहीं है, अरे यार नहीं याद है, तो उसी तरह टपली मारा उसके सिर पे। बट दैट वाज अ बिग शॉक फॉर हर, हिल गई पूरी तरह से, लंकिनी हिल गई, नीचे गिर गई। एंड देन शी रिमेंबर्ड, ओह यस यस, एक्चुअली हु वाज लंकिनी, शी वाज एन अप्सरा इन ब्रह्मलोक। और एक बार उसने एक गलत काम कर दिया था, इसके लिए ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया था, जा जाके धरती, जब जब भी श्राप मिलता है सबको धरती पे भेजते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको भी धरती पे भेज दिया, जाओ धरती पे जाओ और धरती पे चले जाओ और जाके वहां पे राक्षसी बन के बैठो। तो इसने बोला, अप्सरा ने पूछा मेरी कोई गलती हो गई क्या? बोला हाँ आपकी गलती तो हुई है, तो मैं क्या, एक इलाज है, इलाज ये है कि जब भी कोई बंदर आके तुझे एक झापड़ मारे ना, तो समझ जाना तेरा पाप मुक्त हो गया, तेरा श्राप मुक्त हो गया, और रावण का अंत भी आ गया, रावण का ज्यादा वक्त नहीं है। सो शी टेल्स, लंकिनी सेज, आई ब्लेस यू, यू बी सक्सेसफुल। एंड शी टेल्स, आई नो नाउ रावण का अंत ज्यादा टाइम नहीं है, रावण जल्दी उसका अंत हो जाएगा। वो बोल के Lankini is very freed from the curse and she goes back and Hanumanji enters लंका। अच्छा, शादी करके गृह प्रवेश करते हैं ना लोग, जोड़ी हस्बैंड वाइफ, तो कैसे, कौन सा पैर आगे रख के करते हैं गृह प्रवेश? हाँ, कौन सा पैर आगे करके गृह प्रवेश करेंगे? राइट राइट राइट। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया, लेफ्ट लेग आगे रखा, सत्यानाश हो इस जगह का। हनुमान जी ने अपना लेफ्ट लेग अंदर रख के, इट्स सेड, मेंशन, स्पेशली इज मेंशन बाय आचार्यस, कि हनुमान जी ने deliberately he kept his left leg inside Lanka and he entered Lanka. That means that it was destined, you know, the inauspiciousness was there, that it is going to get destined. And then he was on mission Sita. So she was searching for Sita. And that is what is surgical strike, right? You enter the territory, find out your target, finish your target, and then come back without any casualties. That is a successful surgical strike. So he started searching for Sita. He entered into all the palaces, जितने भी महल थे सबके अंदर घुस के, सबके अंदर ढूंढ रहे हैं सीता मैया यहाँ पे रहेगी, और वहां पे एक से एक खूबसूरत गंधर्व लोक की लेडीज हैं, किन्नर लोक की हैं, सब एक एक अप्सराएं हैं, बहुत सारे लोगों से लेडीज हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था इसमें से सीता मैया कौन है, ढूंढ रहे हैं। एंड हाउ आर द लेडीज नाइट टाइम, असुर लोक में क्या कैसा होता है, ऑल इन ऑब्सीन स्टेट। एंड हनुमान जी इज थिंकिंग, फर्स्ट ही सीज लंका, मतलब इतना अच्छा खूबसूरत लंका बनाया है, इसको बर्बाद करेंगे रामचंद्र जी आके, ये लंका है या हेवन है, इट इज लुकिंग लाइक हेवन, स्वर्ग जैसा लग रहा है, इसको आके कैसे इसको बिगाड़ेंगे। So beautifully made, it's a detailed explanation is given, how the roads were well lit, स्फटिक का महल बना हुआ था, एक एक जगह पे, आइवरी का बेड, रावण's bed is made of ivory. Superb description is given. But anyhow, Hanumanji was searching for Sita Maiya all the places, he could not get much idea of the places, he got fed up, मतलब ये सब सीता मैया हो नहीं सकती। क्यों? एक चीज मालूम था उनको, सीता मैया will be very very beautiful, और कुछ इंफॉर्मेशन बाद में देता हूँ। Then he goes further ahead, सब ढूंढा मिला नहीं, एंड में डिसाइड्स, अभी एक पैलेस जो है, द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस, डेफिनेटली इट मस्ट बी ऑफ रावण, तो रावण का पैलेस ढूंढ के देखता हूँ कैसा है, देखता हूँ। तो ही एंटर्स इनटू रावण's पैलेस, और रावण के पैलेस में क्या होता है, अगेन beautiful articles and what do you say, antique stuffs and all that stuff, it's beautifully laden with gems and all,
finally he goes into sorry, the chamber of Ravan, and when he sees Ravan, he says, इससे कोई खूबसूरत हीरो हो नहीं सकता है. Very beautiful, very charming looking, well built body, superb, and पूरे शरीर में इतने घाव कि जब जब लड़ाई किया उसके घाव हो गए. तो घाव देख के पता चला ये रावण है. और दूर में उसको एक खूबसूरत औरत बिस्तर पे लेटी दिखी. ना बंदर का दिमाग इमीडिएटली कंक्लूडेड ये सीता मैया होगी. कूदने लगा बंदर जैसा, started kissing his tail, jumping here and there, up and down. But then on second thought, he decided, oh, it cannot be Sita Maiya. Sita Maiya is so chaste, she will not be sleeping so peacefully in Ravan's chamber. Actually, she was Mandodari. So he keeps searching for Sita Maiya everywhere, कहीं मिलती नहीं है. ढूंढते ढूंढते एक बार एक महल में चले जाते हैं जहाँ पे राम 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 कोई नाम ले रहा है, रामचंद्र जी का नाम ले रहा है. देखा, घूम के देखा कौन है, तो देखा वो तो विभीषण का घर था. और विभीषण रावण का भाई था, छोटा भाई, और वो भगवान का नाम ले रहा था. एंड ही वाज नॉट इनटू ऑल दिस एक्टिविटीज. सो ही फाइनली डिटरमाइंड, यू नो, दैट ये भक्त आदमी है. बट जहां भी घूम के देख रहा था, हनुमान जी वाज ओनली सीइंग इधर, यू नो, समवेयर सम रोमांस इज गोइंग ऑन. रात का वक्त था तो यही सब होगा, शाम का वक्त. तो ही वाज, यू नो, केवल मैं ब्रह्मचारी हूँ, नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, क्या मुझे ये सब देखना सही है क्या? इज इट राइट फॉर मी टू सी ऑल दिस सीन्स? एट दैट टाइम आचार्य से वेरी नाइसली, इट इज द मोटिव दैट डिटरमाइंस इफ द एक्ट इज वर्चुअस और सिंफुल. इट इज द मोटिव. कहते हैं छुरा डॉक्टर के हाथ में भी है और चोर के हाथ में भी है. अगर डॉक्टर चलाता है तो उससे फायदा है, और अगर चोर या डाकू चलाता है तो उससे नुकसान है. बंदूक सिपाही के पास भी है और एक आतंकवादी के पास भी है. अगर सिपाही के पास है तो अच्छी बात है, देश की रक्षा हो रही है. और यही अगर एक आतंकवादी के हाथ में चला जाता है तो same action of killing becomes sinful. So one is virtuous and one is sinful. So when Hanuman says, no, I am not seeing all this out of my own desire. I am seeing this because I am in the seva of the Lord, and in the process I am forced to see all this. So with this he comes to a conclusion. शायद सीता मैया मिलेगी नहीं, शायद रावण ने उसको मार दिया है, या तो उसको खा गया रहेगा या उसको मार दिया है. तो अब मैं क्या करूं? It's going to be impossible for me to search Sita, because उसने तो सब महल ढूंढ लिए, सभी घर ढूंढ लिए, वहां तो नहीं है सीता मैया. तो एकदम समुद्र किनारे पे जाके बैठ गया थोड़ा और सोचने लगे, अगर मैंने ये खबर रामचंद्र जी को जाके बताई कि भाई सीता मैया नहीं है, नॉट फाउंड, तो रामचंद्र जी तो विरह में मर जाएंगे, और रामचंद्र जी मरेंगे तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे, और लक्ष्मण जी भी मरेंगे तो फिर साथ में भरत और शत्रुघ्न भी अपना जान, मतलब देह छोड़ देंगे. और इन सबको देख के, मरते हुए देख के उनकी मां मर जाएगी. उनकी जब माएँ मरेगी तो सुग्रीव और अंगद, वो भी जो उनके सेवक हैं, वो भी अपना प्राण त्याग देंगे, और उस तरह सारे बंदर भी मर जाएंगे. कितना सोच है आगे तक का. उन्होंने क्या सोचा, नहीं, उससे अच्छा मैं जाऊं ही नहीं. अगर मैं जाऊंगा तो इतने लोग मर जाएंगे. इट्स बेटर आई स्टे हियर ओनली, और यहीं पे मैं भूखा रह के मर जाऊं, ये बेटर है ना कि मैं वापस वहां जाऊं. और जब ऐसे दुखी स्टेट पे जब बैठे थे, तब उनकी नजर अशोक वाटिका में पड़ी. नाम भी अच्छा है, अशोक, जहां पे शोक नहीं होता. और वहां पे कौन देखा, उसने एक पीले पुराने कपड़े में एक नारी बैठी हुई है और रोती जा रही है, रोते जा रही है. तो आचार्यगण बहुत अच्छे टीका करते हैं यहाँ पे. इट इज सेड Lakshman was like guru, even Hanuman also as a guru sometimes. So Hanuman and Lakshman are like guru,
गॉड इज गॉड एंड सीता मैया इज लाइक जीवात्मा. और जब जीवात्मा सोने के हिरण के पीछे भागता है या उसके चाह में रहता है, तब माया उसको चुरा के लेके जाती है. और उस स्थिति में सबसे दुखी इस परिस्थिति में रहता है. क्यों? ना गुरु का बात सुना, ना भगवान का बात सुना, माया के पीछे भागा. So she was sitting in the tree, under the tree, and she was crying. Seeing her cry and totally in sorrow, he feels very bad, and he says, "Ye Sita Maiya hogi because she has got all the lakshanas, chastity, all the crying, everything is there." He says, "Yehi Sita Maiya hogi." इतने में सुबह हो जाता है. फुल नाइट ऑपरेशन चल रहा था, पूरा नाइट बेचारा पूरा रावण का महल जितने उसके हैरम्स थे सब जगह घूम के देखा उन्होंने, बोर हो गई. फाइनली शी वेंट टू they were standing in one place, and Ravan got up in the morning, and along with his queen Mandodari and hundreds of queens and ladies, he started coming over there. कहते हैं when he got up in the morning, उसके दिमाग में क्या ख्याल आया? सीता मैया का ख्याल आया. तो भगवद गीता कहता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगस् संजायते कामात् कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः सिद्धिवत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति. ध्यायतो विषयान् पुंसा, बस उसी विषय के बारे में सोच रहा था और उसी से उसका प्रणश्यति हुआ. And he got up, and generally people are always thinking of object of sense gratification. भोग वस्तु की हमेशा सोच रहती है व्यक्ति के अंदर. यही है डेफिनेशन ऑफ ए असुर. रावण ब्राह्मण कुल से था, वेद पाठ में परायण था. कहते हैं लंका में शायद एक भी घर नहीं था जहां पे रोज सुबह हवन नहीं होता था. और रावण was so nice in his recitation of शास्त्र that देवता लोग भी उसको बुलाते थे, भाई पूजा करने के लिए आजा. इतना अच्छा कंट्रोल था उसका मंत्रों के ऊपर. बट एक आदत उसको असुर बना दिया. सो ज्ञानी व्यक्ति कई सारे हैं इस सोसाइटी में, इस देश में, इस दुनिया में, बट ज्ञान होने से काफी नहीं है. अगर अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो व्यक्ति वेस्ट है, रावण के समान है. So when he came over there with his with his wife, and Sita Maiya was sitting over there, and he started talking to her. First and foremost, he praised her beauty, and he tells, मुझे अभी बाकी सारी रानियां मुझे बेकार लगती है, तू ही मुझे बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्यारी लगती है. 24 घंटा मैं तेरे बारे में सोचता रहता हूं, और तू क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर कर रही है? Why are you suffering when you can enjoy? Just marry me and you can enjoy all the bhoga in these 3 worlds. And notice people also do the same thing. They don't care for the character, they don't care for the virtues, they just keep it aside, and what do? Enjoy life to the fullest. And one does enjoyment life to the fullest without any virtues, without any proper guidance, he is living a demonic life. एक असुर किस जीवन बिता रहा है वो व्यक्ति. So finally he says, देख राम तो मर गया, वो तो आएगा नहीं, और अगर जिंदा भी है तो उसको पता नहीं है तू यहाँ पे है, वो आ ही नहीं सकता है. और ऐसे में मैंने तुझे 1 साल का पीरियड दिया है, तू मुझसे शादी कर ले, you will be happy. What does Sita Maiya do? She first turns her back towards Ravan. What does this mean? She is insulting him. कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको पीठ दिखा के नहीं खड़े रहते हैं. That's an insult. So she first insulted him. And then उसने एक तृण उठाया, एक blade of grass, सूखे घास, और उसको उठा के रावण और सीता के बीच में रख दिया. और आचार्यगण इसके पीछे बहुत सारे कमेंट्री देते हैं. रावण सेड, एक ऑप्शन और दिया उसने, तो एक काम कर, मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे पिता जनक महाराज को हर महीने
no, tons of gold, tons of wealth and money I will give him. You just marry me. So Sita Maiya says, all your wealth is like grass, घास के समान है, मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा, मेरे पिताजी को जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी के लिए वो घास समान है. क्यों? उनके जीवन में वर्च्यूज है. In front of Lord Ramchandra ji's opulence and greatness and virtues, you are as insignificant as a grass. इसके लिए उसने घास आगे रखा. It is said, रावण जो तू कार्य कर रहा है ना, एक पशु वृत्ति वाला कार्य कर रहा है. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीज कर रहा है. और वो क्या कौन करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जो लिप्त है वो एक पशु है. और पशु घास खाती है, ले तो खा घास का. यू आर ओनली फिट टू ईट ग्रास. Then the heart of heart, she is thinking, when Ramchandra ji could make one blade of grass into a Brahmastra and kill giant, wanted to kill giant. If I want, I can make this grass also into a Brahmastra and shoot it against you. And then last but not the least, one more Acharyas give a very nice understanding. कहते हैं कि जैसे नरसिंहदेव भक्त के बुलावे पे एक खंबे से बाहर आ गए थे, अगर मैं बुलाऊंगी तो भगवान इस रामचंद्र जी इस घास के तृण में से भी बाहर निकलेंगे और तुम्हारा वध करेंगे. इतना सारा टिका कर कह कर गए हैं रिगार्डिंग just keeping the grass between a blade of grass between Ravan and Sita Maiya. So Sita Maiya said, you will never be able to possess me. A fool who is dissatisfied with his own wife, seeking pleasure with wife of others, is always doomed. And this is what we see in today's date, extramarital affairs. In today's date, this is a trending thing, right? बोलते हैं आजकल भाषा में होती है ना ट्रेंडिंग. Tragically, this is a trending thing. Why do you ignore the advice of the wise and reject what that is good? एक असुर वृत्ति वही है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में वो सोच नहीं सकता. He is not able to demarcate between what is good and what is bad, what is right and what is wrong. इसके लिए वो हमेशा गलत चीज को सही समझ के लेता है और सही चीज को गलत करके छोड़ देता है. वो वक्त दूर नहीं है जब रामचंद्र जी आएंगे, तुझे ढूंढ के मारेंगे और तुझे और तेरे बुरे कार्य का अंत हो जाएगा. रावण को बहुत गुस्सा आता है. He says, you are telling like this? Okay. He tells all the Rakshasis, इसको सताओ, इतना टॉर्चर करो कि वो हाँ बोले. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he tells सीता मैया, I have given you 12 months time. 10 महीने तो निकल गए, अब बचे तेरे पास सिर्फ 2 महीने. या तो तू 2 महीने में मुझसे शादी कर ले, या तो मैं तुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगा. You will be my breakfast. Then Ravan goes away. All the Asuris, the Rakshasis who were sitting there, they started troubling her. ये तू शादी कर ले. कोई प्रेम से बोल रहे, अरे तू शादी कर ले, मजा है. ऐसा कोई पूरा दुनिया इसके पीछे. एंड वाकई में शास्त्र में, रामायण राम कथा में कहा गया है, रामायण में कहा गया है कि he was so handsome and so beautiful कि many ladies he did not even kidnap, they came of their own. एक्चुअली इसमें रावण कहता है कि मैं आसुरी वृत्ति से शादी किया है तुझसे. इवन रुक्मिणी का विवाह रामचंद्र कृष्ण भगवान करते हैं, दैट इज आसुरी स्टाइल से विवाह करते हैं. तो सीता मैया कहती है तू आसुरी वृत्ति के लिए क्या होता है, आसुरी विवाह क्या होता है? जहां पे लड़की का सम्मत होना चाहिए. सेकंड, अगर लड़की सम्मत करती है तो लड़का वहां जाके शौर्यता से अपने बल से, ना कि तेरे से छल कपट से मुझे उठा के लाया. तू छल कपट करके उठा के लेके आया, एक साधु बन के मुझे लेके आया. अगर तू असुरी स्टाइल में शादी करना चाहता था तो अपने शौर्य से, जैसे कृष्ण भगवान ने अपने शौर्य से रुक्मिणी मैया को उन्होंने उठा के लेके आके शादी की उन्होंने. दैट इज एक्चुअल
rule, authentic rule which is given in the Shastra for the Kshatriyas. So सीता मैया, some राक्षस टेलिंग, अरे सीता मैया को तुम शादी कर लो, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं, एकदम लाइफ विल बी मक्खन जैसा हो जाएगा, यू विल एंजॉय लाइफ किंग साइज, शादी कर लो इससे। कोई बोला नहीं नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, तो तुझे काट देंगे, मार देंगे। सब राक्षसी उनको सता रहे थे। इतने में त्रिजटा, डॉटर ऑफ विभीषण, शी कम्स एंड टेल्स, ए तुम लोग कोई सताओ मत। वो भी राक्षसी थी, बट शी वाज द लीडर जैसा। तो उसने बोला तुम लोग मत सताओ, तुम लोग जाओ अंदर, जाओ अंदर जाके बैठो, इसको मत रुलाओ। रावण को अच्छा नहीं लगा इसको रुलाने से, और उसको सबको भगा दिया। और उसने सीता मैया को सांत्वना दिया, देख कल रात को मैंने सपना देखा था, रावण अपना बाल मुंडा के गधों से खींचा हुआ रथ में बैठ के साउथ की तरफ जा रहा था, दक्षिण की तरफ जा रहा था, और पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा था और तेल पी रहा था। It is said, even today it is said, if someone drinks, if sees a dream of someone drinking oil in the dream, it is supposed to be उसका वक्त ज्यादा नहीं, उसका अंत समय बहुत नजदीक है। तो he was heading towards that. So I have seen that. I have seen Kumbhakarna also dying. I have seen all his brothers also dying, except for Vibhishan, सब लोग मर गए, मैं देखा। तो सीता मैया को थोड़ा सांत्वना हुआ, क्या वाकई में? हाँ। बट अगेन सडनली सीता मैया को ख्याल आता है, त्रिजटा बोल के वहां चली जाती है वहां से। तो सीता मैया को रोना आता है, मतलब अब रावण कहीं डर के मारे, राम के डर के मारे, या रामचंद्र जी यहाँ आएंगे तो उनके डर के मुझे आके मुझे मार देगा, उससे अच्छा मैं खुद अपने आप को मार लूं। So she puts her hair, long hair, she's got a long hair, she puts her long hair around the branch of a tree and she was about to kill herself, she was planning to kill herself. उसी वक्त हनुमान जी वहां खड़े। अब हनुमान जी सोच रहे हैं अभी मैं कैसे जाके बताऊं, हाउ कैन आई गो एंड टेल हर दैट डोंट वरी, रामचंद्र इज कमिंग, ही इज वरीड अबाउट यू। अगर मैं सीधा जाके कूदूंगा तो जोर से चिल्लाएगी, बा 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 चिल्लाएगी, सब राक्षसे आएंगे और पूरा मेरा मैसेज देने का कार्यक्रम रह जाएगा। अच्छा, यहां से अगर मैं संस्कृत में बोलूं या एक ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा तो बोलेगी अरे ये तो रावण आया है भेष बदल के, मुझे मानेगी नहीं। तो मैं कैसे अपना असलीपन उसको बताऊं, कैसे, हाउ विल आई प्रूव माय ऑथेंटिसिटी टू हर। तब उनको एक ख्याल आता है हनुमान जी को, अगर मैं संस्कृत में ना बोलूं, अवधि में नहीं बोलूं, अवधि मतलब अयोध्या का भाषा में ना बोलूं, मगर मिथिला वाला भाषा बोलूं, जो लोकल भाषा है, एक तो राक्षसों को समझ में नहीं आएगा, and she will be able to understand and I will gain her confidence. So he starts thinking. तो आचार्यगण कहते हैं जब भी एक जीव कष्ट में हो, तकलीफ में हो, क्या करना चाहिए? उसको सुकून देने के लिए संकीर्तन करना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र सहारा है। And what does he do? He starts reciting the entire Ramayana, right from Balkand till Sita Vivaha, then how Kaikeyi sent Ramchandra ji to Vanvas, and then how they were in Chitrakoot, and then they came to Dandakaranya, and then how from Panchavati Ravan kidnapped her, everything complete till the point Hanuman came and came to see her. वहां तक का बोल दिया उन्होंने, पूरा रामायण बोल दिया। तब सीता मैया ने बोला तो तू झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम ये आवाज, पहले तो ढूंढने लगी आवाज कहाँ से आने लगी। फिर उन्होंने बुलाया, बंदर है, बोला तू कौन है? तू रावण तो लगता नहीं है। क्यों? एक चीज, एक लाइन बोल दिया उसने। क्या बोला उसने? जय श्री राम। और रावण कभी ये नहीं बोल सकता है जय श्री राम। जैसे प्रहलाद के लिए कितना भी तकलीफ दिया, प्रहलाद को एक ही लाइन बोलना था, जय हिरण्यकशिपु, प्रॉब्लम सॉल्व। बट वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको भक्त था। बराबर उसी तरह उसको पता था रावण कभी जय श्री राम नहीं बोलेगा, तो ये जिसने जय श्री राम बोला है, राम का नाम लिया है, तो ये जरूर रावण नहीं है। तो बोलती है अच्छा टेल मी, हाउ विल आई नो यू आर टेलिंग द ट्रूथ? हाउ विल आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ?
He says, see, I am telling you the truth. Only there are two reasons. One is you can test me. So she tells me, okay, आप रामचंद्र जी के शरीर के बारे में वर्णन कीजिए, उनके चिन्ह के बारे में, राम और लक्ष्मण के. Then he describes in detail how Ramchandra has got broad shoulders, thin waist, Ajanu tall, long hands, and beautiful petal, rose petal like lotus petal like eyes, cheeks. His color is like pink red. Everything. His feet is like pink red, and all the chinna he describes bodily features, all bodily features of Ram and Lakshman. He tells, and then finally he says, "Wait, I'll give you one more proof." He removes the ring and gives it to her. This is the ring which Lord Ramchandra ji had given. फिर भी उसको डाउट, टेल मी कुछ सीक्रेट कोड बताओ मुझे. तो सीता मैया को बोलता है, देखिए आपने रामचंद्र जी को बोला था वनवास में जाते वक्त, बिकॉज दिस रामचंद्र जी हैड टोल्ड हनुमान, यू टेल द स्टोरी, तो उसको ऑथेंटिक लगेगा. बिकॉज उसको पता नहीं ना, उसको रावण लगा, उसको तो हमेशा रावण लगता था, वेश बदल के आने में एक्सपर्ट था वो. तो उसने बताया ये स्टोरी बताना. तो उसने एक स्टोरी बताया कि देखो, जब तुम वनवास में निकली और बोली आज इतने योजन चलना है, अपने को वहां तक पहुंचना है, उस आश्रम तक पहुंचना है, और तुम थोड़ा चलने के बाद पहले तो वहां बोले मैं थकूंगी नहीं, मैं तो शतरानी हूँ, मैं तो चलूंगी, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं डरती नहीं हूँ. And you were young also that time, but as a lady, whenever you used to get tired, you used to ask रामचंद्र जी, बस और थोड़ा ही है ना आगे, ज्यादा दूर नहीं है ना. और रामचंद्र जी हाँ बोलते थे, हाँ बस थोड़ा ही आगे है, और बेचारी थोड़ा थोड़ा चल के जाती थी वनवास में जब रहती थी. तब सीता मैया को प्रूफ हो गया, हाँ ये सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा. एंड देन शी स्टार्ट्स टेलिंग हिम, देखो अब मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, 2 महीने का वक्त है. 2 महीने में अगर रामचंद्र जी यहाँ आए नहीं, मुझे नहीं सेव किया, तो मैं मर जाऊंगी. तब हनुमान जी कहते हैं, पहले उसको पूछते हैं, देखो एक काम करो, तुमने मुझे मुद्रिका दी है, अब तुम वापस जाओगे ना, तो एक काम करो, मेरे तरफ से एक निशानी देती हूँ. तो शी रिमूव्स हर हेयर पिन, चूड़ामणि जिसे कहते हैं, और निकाल के हनुमान जी को देती है. बोलते आप ये उसको दे देना. और बोलते हनुमान जी बोलते हैं कुछ और कुछ बताइए जाके, मैं हनुमान रामचंद्र जी को लगे ये ऑथेंटिक है. तो उन्होंने बोला अच्छा एक बोल देना, ये चूड़ामणि सिर्फ उनको पता है और किसी को पता नहीं है, कि ये जब मेरी माँ दे रही थी मुझे एज अ डाउरी, दैट टाइम his father Dashrath and Ramchandra ji were present in front of this when this incident happened. And then tell him the story of Jayant, how Indra's son Jayant came as a crow and troubled me, and how Ramchandra ji was angry and made a blade of grass into a Brahmastra. And when Jayant begged forgiveness from him, he said ब्रह्मास्त्र तो बन चुका है, इसको कहीं ना कहीं तो मुझे इस्तेमाल करना है. तो उन्होंने जाके जयंत का एक आंख फोड़ दिया. और इसके लिए कहते हैं आज भी कौवे को एक आंख से दिखता नहीं है, आज भी कहा जाता है. Crow can see only from one eye, the other eye is blinded, as a crow is blind, from Ramchandra ji's katha. So finally when he tells all this, यहाँ कथाकार आचार्यगण कहते हैं कि what is this significance of giving a ring and टेकिंग चूड़ामणि, मतलब वो चूड़ामणि देना और यहाँ रामचंद्र जी रिंग देना, इसका क्या मतलब है. तो इट इज सेड वेरी नाइसली दैट दिस गिविंग द रिंग signifies that abhaya is given by the Lord to Sita Maya, and giving the chudamani, that is the hairpin, is शरणागति. जब एक जीव शरणागत हो जाता है भगवान को, तो भगवान उसे जरूर इस भवसागर से बचाते हैं. There is no iota of doubt about it. तब हनुमान जी देते हैं, एक काम करो, मैं आपको उठा के लेके जाता हूँ, वाई वरी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको लेके जाता हूँ. तो सीता मैया से सॉरी, that time I was kidnapped by force, but now I don't want to willingly be touched by another man. Second, रामचंद्र जी अगर आएंगे और इन लोगों को मारेंगे, हनुमान जी बोलते मैं ही मार देता हूँ. नहीं नहीं नहीं, उनका हीरोइज्म बढ़ना चाहिए, उनका नाम बढ़ना चाहिए. दैट इज द थिंकिंग ऑफ अ चेस्ट वाइफ. ही शुड किल
all these Rakshasas and then take me. Go and tell, I'm waiting for him. Go and tell. And then last one question. Does he really think about me? Does he really remember me? Or has he forgotten me? I said that time Hanuman says, no, no, no. He has not forgotten about you. आपके बारे में याद कर रहे हैं. रोज आपको याद करके रोते रहते हैं. तो फिर हनुमान जी बोलते हैं चलो ठीक है, अभी एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा. बट तब सीता मैया एक मिनट पूछती है, अरे एक मिनट, यू सेड यू आर गोइंग टू टेक मी ओवर देयर, तुम कैसे लेके जाओगे? कैसे रामचंद्र जी यहाँ कैसे आएंगे? इतनी बड़ी रावण की सेना है, कैसे लड़ पाएंगे? कैसे आ पाओगे वहां से समुद्र में से? तब हनुमान जी कहते हैं देखो, मैसेंजर किसको भेजते हैं? किसको दूत बना के भेजते हैं? अभी समझो आपको कोई आपका कुछ का मैसेज भेजना है, किसी को एक कवर भेजना है, किसी को कुछ लेटर भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? एक मैसेंजर को रखोगे, मतलब अपना बिल्डिंग का ड्राइवर हुआ, वॉचमैन हुआ, नौकर हुआ, उसको भेजोगे. कोई पावरफुल बलशाली को तो नहीं भेजोगे. तो सोचो, मुझे भेजा गया. हनुमान जी कह रहे हैं आई एम द वीकेस्ट मंकी इन द होल टीम. आई एम द वीकेस्ट मंकी इन द होल टीम एंड मुझे भेजा गया एज ए मैसेंजर. तो सोचो रामचंद्र जी के पास कितने पावरफुल मैसेंजर हैं. दिस शोज हनुमान जी वाज हम्बल. ही वाज नॉट प्राउड अबाउट हिज पावर्स. ही वाज हम्बल. थैंक यू. मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बट मैं इतना छोटा हूं, मगर आप चाहो तो बोलो, अभी उठा के लेके जा सकता हूँ. बोला मैं वीकेस्ट आदमी हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े पावरफुल हैं, सुग्रीव, जाम्बन और अंगद, ये सब बहुत पावरफुल लोग हैं. वो लोग आके पूरा तहस नहस कर देंगे. इसको चिंता मत करो. अच्छा मैं जाता हूँ, तो एक काम करता हूँ, जाने के पहले मुझे अपना दुश्मन का ताकत भी तो देखना पड़ेगा, कितने पावरफुल है मेरे दुश्मन. तो सीता मैया बोलते ठीक है, आपको जो करना है करो. बोलते मैं थोड़ा फल वल खा लेता हूँ. तो फल खाते किधर हैं? ही क्रिएट्स अ रक्जक इन द होल गार्डन. फल थोड़ा खाते हैं, कल थोड़ा फेंकते हैं. ही बिकम्स, ही क्रिएट्स सच अ रक्जक दैट एवरीवन हैज टू लुक एट हिम. इमीडिएटली रावण को इन्फॉर्मेशन जाता है. रावण एक 80,000 सैनिकों को भेजता है. बड़ा युद्ध होता है, सब सैनिक मारे जाते हैं. एक से एक बड़े बड़े धुरंधर को भेजा जाता है, जम्बूमाली और एक एक करके सब धुरंधर आते हैं, सबको मार के भगा देते हैं. फाइनली without help or without any situation, इंद्रजीत comes, मेघनाथ, the eldest son. आप लोग सबको रामायण सीरियल तो याद रहेगा, पिताश्री करके आवाज निकालता था इंद्रजीत. तो वो जाता है, मैं जाके इसको बंदी बना के लेके आ सकता हूँ. तो रावण बोलता जा, जाके लेके इसको बंदी बना के. जाता है और ब्रह्मास्त्र यूज करता है. एक्चुअली हनुमान जी को तो वर मिला है कि उस पर कोई अस्त्र काम नहीं करेगा, बट उसने बोला नहीं, अब फिलहाल मैं थोड़ा हम्बल बन जाता हूँ. हम्बल वो कई बार बने इस यात्रा में, कई बार बने. फर्स्ट टाइम व्हेन ही हैड टू एंटर द माउथ ऑफ द नाग, सुरसा के मुंह में जब जाना था, तो अपने आप को छोटा बना लिया. तो व्यक्ति, आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को छोटा बना लेना वक्त आने पे, तो प्रॉब्लम अपने आप निकल जाती है. हम लोग कई बार प्रॉब्लम में अटक जाते हैं क्योंकि अपने आप को हम बड़ा समझते हैं. मेरे को सिखाएगा, मैं सिखाता हूँ उसको. उसको खुद रह जाता है. So it's better sometimes you become humble. Similarly, when Sita Maya asked for his power, he says, I am most weakest man. And यहाँ पे जब ब्रह्मास्त्र यूज किया इंद्रजीत ने, तब वापस हम्बल बन गए, एकदम सिंपल बन गए. मतलब हनुमान, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी बंध जाते हैं कि उसको मालूम है थोड़ा देर में ब्रह्मास्त्र अपना असर नहीं दिखाने वाला. और वहां हनुमान को लेके जाते हैं रावण के पास. कौन है तू, कहां से आया, क्यों आया यहाँ पे? देखो ना, देखो मुझे आपसे मिलना था, और डायरेक्टली आपको कोई मिलने तो देगा नहीं, इसके लिए मैंने कुछ लोगों को थोड़ा मार पीटा किया. तो आप अभी आप मुझे मिलोगे ना, मुझे बात करोगे ना, इसके लिए मैंने ऐसा किया. ओह ऐसा है क्या? व्हाट इज योर रियल पर्पस, टेल अस. मैं हूं पहले ही सेज आई एम सुग्रीव का दूत हूं, बट देन नेक्स्ट टाइम ही सेज आई एम राम दूत एंड आई हैव कम हियर विद एन पर्पस. What you want, which lady you want, tell me, I will get you that lady for you, but you release Sita Maiya. बस. तो इसको आया गुस्सा. How it come?
हनुमान इज टॉकिंग लाइक दैट, बहुत गुस्सा आता है उसको. एंड फाइनली ही टेल्स किल दिस मंकी. इमीडिएटली जैसे बोला है बंदर को मारो, मार दो, तो तुरंत विभीषण उठ के खड़ा होता है, बोलता है प्लीज ये बंदर को नहीं मार सकते हो आप. I'm fast forwarding because time is also a factor, so I'm just going a little fast. So he says बंदर को नहीं मार सकते हैं, मैसेंजर है, मैसेंजर, दूत को नहीं मार सकते हैं. दूत के साथ तीन ही चीज कर सकते हैं, या तो उसको फ्लॉग कर सकते हैं, या तो उसका बाल मुंडवा सकते हैं, या उसका हाथ पैर काट सकते हैं. ये तीन चीज पॉसिबल है शास्त्र के हिसाब से, फ्लॉगिंग, एम्पुटेटिंग और शेविंग ऑफ हिज हेड, बट यू कैन नॉट किल हिम. और विभीषण कहता है आप तो शास्त्र के ज्ञानी हो. तो इमीडिएटली ये बोलता है हाँ हाँ मैं शास्त्र का ज्ञानी हूँ. रावण बोलता है हाँ मेरे को तो सब मालूम है. तो अब क्या करें, बोला एक बंदर का सबसे प्राइज्ड चीज क्या होती है, उसकी पूंछ. पूंछ पे ये लगा लो और आग लगा दो. वहां पे सीता मैया को सब राक्षसी पूछ रही है, वो बंदर तुमको मिलने आया था, तुम्हारा पहचान क्या है. तो सीता मैया, नहीं 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 मेरा कोई पहचान नहीं है, मुझे, मैं कैसे पहचान सकती हूँ. मुझे लगा आपके जैसा कोई राक्षसी रहेगा, इधर उधर कूद रहा है, सत्यानाश कर रहा है, राक्षसी तो कर रहे हैं ऐसे सब, बंदर ऐसा नहीं करता है. तो सीता मैया को मालूम पड़ा कि उसको पूंछ पे आग लगाने वाले हैं. तो वहां पे पूंछ को बांधा. पूंछ, ऑल नो द स्टोरी. हनुमान जी अपना पूंछ लंबा किया और बांधते गए और उस पर तेल डाल के जला दिया. इतने में ब्रह्मास्त्र ने अपना हाथ छोड़ दिया था, मतलब उसका जो बांध के रखा था वो छूट गया था. हनुमान जी बोला अब दिखाता हूँ उसको. एंड द बेस्ट पार्ट वाज हनुमान जी को आग लगने रही थी, गर्मी लगने रही थी. ही वाज फीलिंग आइस कोल्ड, वेरी नाइस कूल फीलिंग हो रहा था. वो ऐड है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसा लग रहा था उनको अपने पूंछ पे, आग लगी हुई है. तो आचार्यगण यहाँ पे दो चीज कहते हैं, एक तो सीता मैया वाज प्रेइंग, सेकेंडली एवरीवन नोस द ओरिजिनल सीता वाज इन द फायर. Nakli Sita was sitting there. So the Sita Maya sitting in the fire, how could she allow a devotee's body to be burnt? She was praying. Sita Maya said, "Isko kuch hone nahi dungi." So that's why fire did not affect Hanuman ji. But हनुमान जी ने अपना पूरा रिवेंज ले लिया, जितना सर्जिकल स्ट्राइक में जितना नुकसान कर सके करके इधर उधर सब जगह आग लगा के समुद्र के किनारे जाके बैठे, अपना पूंछ बुझाया. बोला अरे यार एकदम कूल कूल फीलिंग हो रहा है. फिर उठ के देखा उन्होंने, अब अचानक उनको याद आया अरे गुस्से में मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने गुस्से में कहीं इस आग में सीता मैया जल गई हो तो, व्हाट इफ आई हैड बर्न्ड सीता मैया. देन ही कर्सेस हिमसेल्फ कि गुस्से में व्यक्ति आदमी अपना आपा खो देता है और क्या क्या गलतियां करता है. Just anger is temporary madness, and in this madness, people sometimes burn with a big crime and they'll end up in jail. Once we had gone for book distribution in the jails, so there one person was there, nice, decent person, but he said that I committed a murder. How did you commit a murder? Just in the fit of rage, I just killed someone. Then whole life he was repenting in the jail. तो गुस्से में व्यक्ति अपना आपा खो देता है. So that is what Hanuman ji is trying to teach us over here. कि भाई in the fit of rage, one should never do anything. Should not jump to any conclusions. But then on a second thought, he jumped again, he climbed up. Then he could see Sita Maya in the garden. Then he realized, अरे Sita Maya कैसे जलेगी? It's common sense. When Sita Maya, if Lord wants, he can protect you. Why can't he protect his wife, his consort, his wife Sita Maya? So again, he takes return journey from there back to India, Lanka to India flight. And this time, no problem. Straight, no hopping flight, straight flight. And जैसे यहाँ पहुंचे, हाँ monkeys were very happy to see him. उसका हाव भाव देख के, ऊपर से देख के समझ गए कि यार all the monkeys were very happy to see him. They got good news. And he came and said, yes, मैंने सीता मैया को देख लिया है. She is perfect. अपने पास time short है. We have to go and report to Ramchandra ji, and we have to immediately come and kill Ravan. Otherwise, 2 महीने में वो सीता मैया को मार देगा. So finally, the whole team
proceeds towards Kishkinda, and रास्ते में एक मधुवन बोल के एक वन आता है. It's a private garden of Sugriv. All these monkeys go inside and enjoy this. It was not allowed. No one was allowed. But all these people in enthusiasm entered there. They ate the fruits, jumped here and there. No, they took honey. No, मधुमक्खी के छत्ते थे, बड़े बड़े छत्ते, उसमें से हनी निकाल के फ्रेश हनी पिया उन्होंने. कूद रहे थे अंदर. But all given and said, the best part was when this caretaker who was there, who was looking after the garden, he came and reported to Dahimukh. He came and reported to Sugriv कि भाई आपके बंदर का आके वहां पे तहस नहस कर रहे हैं. मतलब उसकी हिम्मत तो हो नहीं सकती है. सुग्रीव सेड कि हिम्मत तो हो नहीं सकती है तहस नहस करने की. जरूर उनका खुशखबरी रहेगा उनके पास, इसके लिए खुशी के मारे वो पागल हो गए, वो लोग कर रहे हैं. Finally, those monkeys came to this thing. Again, as I told you, Hanuman was not standing in the front. Hanuman was behind, but then the other monkeys pushed him ahead. And with humble this thing, he came and reported, I have seen Sita. And then Ramchandraji asked, how is Sita? He said, Sita is fixed her mind on you. And in separation of you, she is hardly able to maintain her life. So please, she has given you this Chudamani, and she has told me the story of Jayant, which she narrated to her. And the Rakshas are tormenting her. So sata rahe hain. That time he takes the Chudamani and keeps it to his, presses it to his chest, and both Ram and Lakshman both cry with incident flow of tears. And finally, I offered Sita Maiya also. He says, मैंने सीता मैया को ऑफर दिया कि आप आइए, मैं आपको लेके जाता हूँ. बट सीता मैया सेड, मैं वॉलंटरीली किसी पराया मर्द के ऊपर बैठ नहीं सकती हूँ और आ नहीं सकती हूँ. रामचंद्र जी को बोलो जल्दी से यहाँ आए और मुझे छुड़ा के लेके जाए. And this point, Sundarkand ends. So Sundarkand, as I told you, has got n number of implications and n number of reasons behind this. So all of you all, tomorrow morning we have to celebrate Ram Navami. And okay, you can switch off the recording. Jigar? Prabhuji, 1 minute. I'm getting this message for stopping the recording. One minute. Yeah. Yeah, you can continue, Prabhuji. Yes. So